वेलकम बैक। उसामा बिन लादेन की बेवाओं और बच्चों की सफरी दस्तावेजात तैयार कर ली गई हैं। उनके वकील का कहना है कि पासपोर्ट वजारत दाखिला की तहवील में होने की वजह से सऊदी अरब रवानगी में ताख़ीर हो रही है। उसामा के अहल खाना के वकील एडवोकेट मोहम्मद आमिर के मुताबिक उसामा की फैमिली को सजा मुकम्मल होने के बाद मंगल की शब सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। तहम दस्तावेजात मुकम्मल ना होने की वजह से बुध की शाम तक ताख़ीर हुई है। हुक्काम ने अब तक इस मसले पर राय नहीं दी है। उसामा बिन लादेन की फैमिली में 3 बेवाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि उसामा की फैमिली बेवा एमल और उसके बच्चों की यमन के बजाय पहले सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के है। दूसरी जानिब अमल की भाई ज़करिया ने हुक्म से दरख्वास्त की है कि उसकी बहन और उसके बच्चों को सऊदी अरब के बजाय यमन भेजा जाए। और इस वक्त सियासत में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी मीडिया से बात करें, आइए आपको दिखाते हैं। Like to resolve this, but there is a method of resolution, and of course we have talked about it. There have been a number of rounds of negotiations, and hopefully we should be able to resolve, and I think we should resolve. सर मियां साहब ने जो कहा एक तरफा पहल करनी चाहिए उसके लिए साइड कि क्या लॉजिक है कि इंडियन 1984 से यहाँ पर आके बैठे। सर मियां साहब ने जो पहल करने का कहा है क्या पहल कर सकते हैं आप? Let me not comment on what Mia Saab has said. I think that's his opinion. Okay. I don't want to get into this discussion. But thank you very much. Are you optimistic that anybody will be found at all? Because it's been quite a few days and hope may be running out. It's more than a week. You see, we are making all efforts. We'll continue to make all efforts. Whether it takes 10 days or 10 months or if it takes 3 years, we're not going to give up this. If we have to dig out this mountain, we'll dig it out. Because, you see, life and death, you understand our belief. Of course, we pray for miracles and we'll not give up unless at least we recover. And only once we have recovered and we made all efforts, and it's not time bound. I have told my troops when they're in session, whether it takes 6 months or it takes 6 years, we're not going to give up on this. That's very important. The families should know exactly what is happening. But of course I agree what you're saying as the time is passing. But then of course one should hope for the best. We go for the best. What would you say about the help from the international community? Is there anything more that they could have done? I think I would like to avail this opportunity to thank international community. I think they were very forthcoming, and any country that they could do anything, they have come to help us. You must have seen various countries that have come here. They have come with the equipment and all that thing, but unfortunately the experience in the Western countries of an avalanche, that's the purely snow avalanche, and this kind of landslide is totally different. They brought the equipment, but some of that equipment does not even function in this environment. It's meant for snow and all that thing. So they have done their best. They brought whatever they could bring. They have tried to help us, and at least that has helped us to focus on the areas that we have to explore if somebody has survived or anything else. They have helped us, and I think we should be grateful to them. They have done their best, and this is the technology that they have. They brought our technology. Our highest post in this area is more than 22,000 feet, which is today man 22 feet. And to be exact, कितना होगा? 22,000 आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी सियाचिन में मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उन तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सानिया सियाचिन के मौके पर पाकिस्तान की और पाक फौज की मदद की।
उधर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इंतखाबी अखराजात केस में तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो सियासी जमातों के अस्करी विंग्स का खात्मा हो सकता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी अखराजात केस की समाअत की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। उनका कहना था कि इंतखाबी मुहिम में पंफलेट तकसीम होने चाहिए, जबकि बिलबोर्ड्स और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पोलिंग में 11% नहीं 50% वोट लेने वाला कामयाब होना चाहिए। गर्मियों का जिक्र करते ही दिमाग में लस्सी, गोला गंडों और दूसरे ठंडे मशरूबात का ख्याल आता है, मगर एक और चीज़ है जिससे मुल्क भर की खवातीन गर्मियों में मुस्तफीद हो रही हैं। वो चीज़ क्या है बता रही हैं नादिया मिर्जा इस रिपोर्ट में। गर्मियों का आगाज होते ही खवातीन की अक्सरियत लॉन की खरीदारी के लिए मज़ारों का रुख करती है। तपिश और हबस के मौसम में लॉन ही खवातीन का आरामदेह पहनावा साबित होती है। इस साल में आने वाले मकबूल प्रिंट्स में फ्लोरल, चीता, जिगजैग, स्पाइरल प्रिंट, पोल्का डॉट्स समेत मुगलिया स्टाइल के दिलफरेब डिजाइन शामिल हैं, जबकि रंगों में पीच, आतशी गुलाबी, रस्ट, मोव, सी ग्रीन, लाइट लेमन, टी पिंक समेत पिस्ते की रंगीनियाँ खवातीन में यकसा मकबूल हैं। सॉफ्ट कलर, सटल कलर्स होने चाहिए, काइंड ऑफ ब्राइट कलर्स जैसे लाइक फिरोजी, येलो, रेड भी चल जाता है और थोड़ा सी ग्रीन, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल तो एम्ब्रॉयडर्ड ही चल रहे हैं, गला दामन है, जैसे फूलों वाले हो गए, डिज़ाइनिंग वाले हो गए, यही ज़्यादा अच्छे हैं। रंग और प्रिंट्स जिंदगी में रौनक और रंगीनी का एहसास तो जगाते ही हैं। गर्मियों की सूरत में किस किस्म के रंग और प्रिंट्स खवातीन की ज्यादा पसंद होते हैं, इस हवाले से खवातीन और लड़कियों की मुख्तलिफ आरा थी। कुछ का कहना था कि गर्मियों में तो अमूमन हल्के खिलते रंग और मनपसंद प्रिंट्स ही ज्यादा काबिल तरजीह होते हैं। बाज़ खवातीन डिजाइनर्स पर तनकीद करती हुई भी नजर आई। गर्मियों में तो हमेशा सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए, जो कि कोई डिजाइनर बिल्कुल नहीं बना रहा। मतलब लाइट पिंक्स और वाइट्स और मतलब सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए। लाइट कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो कूल कलर्स होते हैं, दैट्स व्हाई। और प्रिंट्स भी छोटे छोटे प्रिंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मार्केट में लॉन की आम वैरायटी के साथ साथ चिकन लॉन की दीदाज़ेब फैंसी और कढ़ाईदार वैरायटी भी खवातीन और लड़कियों में खास मौके के लिए पसंद की जाती है, लेकिन इस साल ये सी ग्रीन, सफ़ेद, काला, लेमन और गुलाबी रंग के दिलकश डिजाइन के साथ ज्यादा मकबूल आम हैं। लॉन के दिलकश और दिलफरेब प्रिंट्स यकीनन गर्मी का एहसास किसी हद तक खुशकुन रंगों में बदल देते हैं। कैमरामैन नवीद ज़ुबैरी के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। उधर मकामी फर्नेस ऑयल की कीमत में 1400 रुपए टन कमी, जबकि दरामदी फर्नेस ऑयल की कीमत में मामूली इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल के बाद मकामी फर्नेस ऑयल की नई कीमत 83,022 रुपए फी टन, जबकि दरामदी फर्नेस ऑयल की कीमत 85,071 रुपए फी टन हो गई है। फर्नेस ऑयल की कीमतों में कमी से बिजली की पैदावारी लागत में भी कमी का इम्कान है। शब्बीर टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड ने कराची के मसरूफ तरीन शॉपिंग मॉल पार्क टावर्स में अपना डिस्प्ले लगाने का फैसला किया है। शब्बीर टाइल्स एंड सेरामिक्स के मुताबिक ये हिकमत अमली इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए अख्तियार की गई है। अगर इसके नताइज अच्छे हुए तो पार्क टावर्स इंतजामिया की रजामंदी से इसकी मदद में तोसी हो सकती है। इस मौके पर स्टाइल की मैनेजिंग डायरेक्टर अली रजा अलाउद्दीन ने कहा कि इसका बुनियादी मकसद मुमकिन तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सारिफीन तक रसाई हासिल करना है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पैदावार ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की रोजाना बिगड़ती सूरत हाल पर इंतजामिया को तलब करने का फैसला किया है, जबकि कमेटी को बताया गया है कि पाकिस्तान स्टील की कीमती अराजी पर मुसलसल कब्जा हो रहा है। कमेटी का इजलास चेयरमैन इकबाल मोहम्मद अली की सरबराही में हुआ। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए वजारत पैदावार के हुक्काम का कहना था कि कब्जा माफिया जमीनों पर मुसलसल कब्जा कर रही है और उसके साथ अंदर के लोग भी मुलव्वस हैं, लेकिन बार बार की शिकायत के बावजूद भी मिल इंतजामिया इसका नोटिस नहीं लेती। कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब मेरिट पर नहीं हुआ, जबकि यूनियन लीडर को बोर्ड का मेंबर नामजद कर दिया गया है, जिसका कोई जवाब नहीं। कमेटी को बताया गया है कि स्टील मिल में मुलाजमीन फौज दर फौज भर्ती हुए हैं।
और अमेरिकन नेशनल हॉकी लीग में फ्लोरिडा पैंथर्स ने न्यू जर्सी डेविल्स को एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूयॉर्क में खेले जाने वाले आइस हॉकी के इस मैच में रिवायती हरीफ टीम्स के दरमियान भरपूर मुकाबला हुआ। इस शानदार मैच को देखने के लिए 17,000 से ज्यादा शायकीन मौजूद थे। पहले पीरियड में न्यू जर्सी की टीम को 3-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। उसके बाद फ्लोरिडा के खिलाड़ियों ने मुसलसल 3 गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। ये बराबरी मैच के आखिर तक बरकरार रही। ताहम फ्लोरिडा पैंथर्स के ब्रायन कैम्बल ने आखिरी लम्हात में गोल स्कोर करके अपनी टीम को 4-3 से फतह दिला दी। अमरीकी खलाई प्रोग्राम से रिटायर होने वाली शटल डिस्कवरी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के मज़ाबात में वाक़े डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी खलाई प्रोग्राम से सुबुकदोश की जाने वाली खलाई शटल डिस्कवरी को वाशिंगटन में कायम अजायब घर में अवामी नुमाइश के लिए रखा जाएगा। 28 साल पुरानी खलाई शटल रियासत फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से वाशिंगटन के लिए रवाना हुई। डिस्कवरी ने अपना ये आखिरी सफर अमरीकी खलाई इदारे नासा के बोइंग 747 जम्बो जहाज की पुश्त पर किया। जहाज से बंदी खलाई शटल को वाशिंगटन के कई अहम अवामी मराकज़ के ऊपर से गुजारा गया ताकि अवाम इस शटल का नज़ारा कर सकें। बादअज़ा ये जहाज शमाली वर्जीनिया के डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया, जहां से खलाई शटल को वाशिंगटन के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के मरकज़ मुंतकिल कर दिया जाएगा। याद रहे कि नासा ने गुज़श्ता बरस खलाई जहाज़ों की परवाज़ें ख़त्म करने का ऐलान करते हुए अपने जहाज़ों का बेड़ा सुबुकदोश कर दिया था। नासा के इस इक़दाम का मकसद खलाई जहाज़ों की जदीद किस्म की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करना था, जो ज़मीन के ज़ेरी मदार से बाहर भी सफ़र करने की सलाहियत के हामिल होंगे। वाशिंगटन के मरकज़ी हिस्से में वाक़े एयर एंड स्पेस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मसरूफ़ तरीन अजायब घरों में होता है। हर साल तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अफराद इसका दौरा करते हैं। नाज़रीन, घुड़दौड़ दुनिया भर में एक मकबूल खेल है। तहम अगर इस खेल के बुनियादी किरदार यानी घोड़े मियाँ का मूड ख़राब हो जाए तो फिर कुछ ऐसा मंजर भी देखने में आ सकता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।